up the gold key, I'll get lucky. 진심이면 everything's gonna be okay. 어떻게 벌써 왔나봐. 잠시만 기다려줄래요? 혼자 있을 때 훅 들어와 정신없이 날 흔들어놔. 지금이 딱 널 위한 showtime. Making your 생생 울리면 매일 찾아와 줄래. 세상 맞출래. 맹 돌달간 잠들어버릴 거려. 시간이 지나면 굳어있던 내 마음이 내 마음이 아이스크림처럼 녹아버릴 테니까 Come knock on my door. 내 맘이야 네가 두드려줘. 다시 한번 Baby 난 knock on my door. 쉽게 열리지 않을 거야. 내일도 모레도 다시 와줘. How to create a smartphone app that keeps customers coming back. Hey, Jamie Turner here with the 60-Second Marketer. I wanted to show you a new app that's out by Coca-Cola called Push and Play. One of the things that people wrong is they don't give you a reason to come back. Coca-Cola is not giving you a reason to come back, but they feed you the brand every time. So here's how it works. Basically, it's called Push and Play. You go in and actually say, what brand do you want to play this game with? Select the Coke brand, pretty common brand. Go ahead and select. I press play. Basically, you just need a little bit of information about the Coke brand right there. And it says, are you ready? If you're ready, go ahead and push the thing and see if you've done it. And it says, yep, you did it. Now I'm going to put the 2 there. And I keep playing the game as it goes on. Boom, boom, boom. Keep on playing. Gives me a reason to get engaged. Press push. Get engaged. And then when I do something wrong, it says, hey, you want to go ahead and come back. And it gives, oops, you want to play again, yes or no. Just like TT. 이런 내맘 모르고 너무해. I'm like TT. Just like TT. Tell me that you'll be my baby. Gives people a reason to come back. 조건이 없다고 해? Gives them 얼굴 값이 information about your brand. 못한대. Not in a sales 전혀 위로한 널 baby. 미칠 것 같아. 와중에 왜 눈 뜨고 본 건데.
that data to understand the physics of the process beneath us, how the buildings around us respond to these earthquakes, and we will have more data than we have from the traditional cycle. MindShape can improve 멜리는 벨벨벨 이젠 나를 배려해줘 배터리 낭비하기는 싫어 자꾸만 봐 전화가 펑 터질 것만 같아 몰라 숨도 못 쉰대 나 때문에 힘들어 심장이 떨어지네 왜 그 말은 안 너무 예쁘대 자랑하는 건 아니고 약간은 못 받아서 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 later 저러지만 할만하지 않아 부르게 해줄게 baby 아직은 좀 일러 내 맘 듣긴 일러 하지만 더 보여줄래 Shut up baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 태연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 맘 모르게 Just get together and then return 소리가 여기까지 들려 땀에 젖은 전화기가 여기서도 보여 바로바로 대답하는 것도 매력 없어 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본 너무 힘이 나고 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아 답장을 못해줬어 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤 만나긴 좀 그렇고 미안해 좀 이따 연락할게 later 저러지마 어디 가지 않아 헤어질게 너의 baby 너무 빨리 싫어 성의를 더 보여 내가 널 기다려줄게 Shut up baby 좀 더 힘을 내 여자가 쉽게 마음을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 태연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 맘 모르게 Just get together and then return को क्लिक कर दीजिए ठीक है ये आगे जितनी भी एक्टिविटी होगी आप प्रॉपर्ली बंद कर दिए ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देगा तो इससे हमें क्या फायदा होगा वापस चलने के बाद हम वो जो हैंड्री की ऐप है वो भी हैंड्री अगर नहीं होगी तो बंद कर देगा तो ये तरीका जो है सबसे एफिशिएंट तरीका है इससे ना तो मोबाइल की बैटरी ज़्यादा चलनी होती है जहाँ पे आपका एक दिन लगता है बैटरी का वो अच्छी तरह से चार्ज होने चीज़ का नहीं मालूम था वो उन तक भी ये नॉलेज चला जाए। Yo, what up, world? This is Deshaun. Welcome to my world. You ready to take a journey? I know I am. It's about to go down. You ready? Let's get it. You ready to take a journey? I know I am. It's about to go down. You ready? Let's get it. ऐप या .com करके
खोलना है तो आपको ये कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा, जो आपके वेबसाइट खुल के नज़र आएगी। आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना यहाँ पे एक अकाउंट बनाएं। मेरा तो ऑलरेडी एक अकाउंट है, मैं इसे डायरेक्टली खोलूँगा। देखिए मैंने अपनी जो कुछ एप्लीकेशंस बना के रखी हुई हैं, तो ये मेरी 2 एप्लीकेशन है जो मैंने बना रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे फॉलो करें और अपनी एक खुद की एंड्रॉयड ऐप बनाएं, जिससे काफ़ी अच्छा आपके दोस्तों में इम्प्रेशन पड़ेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सिंपली आपको ये क्रिएट ऐप पे जाना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आता है और ये कुछ इस तरह का डेमो स्लाइड चलता हुआ नज़र आता है कि आपकी जो ऐप है वो किस तरह से आप बना रहे हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको एप्लीकेशन नाम देना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ। मैं अपने ही इस चैनल का नाम दे देता हूँ, ऑल इन वन टेक्निक्स। आपको पैकेज का नेम सिंपली डालना होगा। तो पैकेज का नेम वो सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है खुद से ही, तो आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए या डेमो टेम्पलेट चाहिए, या फिर आपने जो पहले ही से अपनी ऐप बना रखी है उसकी टेम्पलेट चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोलना चाहूँगा कि आप डेमो टेम्पलेट लें। आप डेमो टेम्पलेट लेते हैं, उसके बाद आप क्रिएट ऐप करते हैं। क्रिएट ऐप करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि एप्लीकेशन का नाम है वो आपने पहले ही फिलअप कर दिया था। वर्ज़न, आप कौन सा वर्ज़न बना रहे हैं, 1.0, 1.05, 1.2, आप जो सभी वर्ज़न डालना चाहे। जैसे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 1.0 ही आएगा। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप जैसे कि 2.0 कर दें। और उसके बाद ये एप्लीकेशन आइकॉन, आप एप्लीकेशन आइकॉन आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन आइकॉन होता क्या है। सिंपली ये कुछ आइकॉन्स हैं, जैसे क्रोम का आइकॉन्स है, एडसेंस का है, रिकॉर्डर, कैलेंडर। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये उनके आइकॉन हैं। तो आप एक आइकॉन अपना एक सेलेक्ट करें, जैसे कि आपके फ़ोटोज़ हैं, उन फ़ोटोज़ में से कोई आइकॉन चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेंज आइकॉन का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको चूज़ फाइल का कुछ नज़र आएगा, आप यहाँ से कोई भी चूज़ करें। उसके बाद नोटिफिकेशन आइकॉन, नोटिफिकेशन आइकॉन में जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे कुछ फेसबुक की नोटिफिकेशन आई है, तो ये जो फेसबुक का ये एफ नज़र आ रहा है ये एक नोटिफिकेशन आइकॉन है। तो आप इस नोटिफिकेशन आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो से लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। और ये हेडर इमेज, आपको बताना चाहते हैं कि जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये जो हेडर इमेज है वो इस तरह से नज़र आएगी। आपके पास अगर कोई अपनी इमेज है जो आप लगाना चाहते हैं तो सिंपली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद कंटेंट रेटिंग, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको रेटिंग एप्लीकेशन की कौन दे सकता है। आपके पास अगर एवरीवन करते हैं तो जो कोई भी वो एप्लीकेशन खोलेगा, अगर आपने गूगल प्ले स्टोर पे डाली होगी तो वहाँ से वो उसे रेटिंग कर सकता है। और उसके बाद मीडियम, हाई, ये काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, यहाँ से आप रेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे सेव चेंजेस करता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट रेटिंग मांग रहा है तो आप एवरीवन कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप एवरीवन पे चूज़ करें और उसके बाद सेव कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए मॉड्यूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मॉड्यूल्स होते क्या हैं पहले तो आप उसके बारे में ये जान लें। मॉड्यूल्स जो आपके होते हैं वो ये होते हैं कि आपका जो ये एप्लीकेशन है कोई खोलते हैं तो साइड में एक ऑप्शन नज़र आता है जहाँ पे कुछ फंक्शन नज़र आते हैं, जैसे कि रिसेंट पोस्ट या फिर स्टार्स या जो कुछ भी हैं, तो आप अपने मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको डिटेल्स पे जाना है। इस डिटेल्स पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू वीडियोस, आप न्यू वीडियोस करके डाल दें और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आप सिंपली बैक हो जाएं।
आप बैक फिर मॉड्यूल्स पे चले जाएं। आप अपने मुताबिक यहाँ पे मॉड्यूल्स को चेंज कर सकते हैं, कौन सा मॉड्यूल्स आपको कहाँ रखना है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन देना है उसमें, या फिर थीम चेंज कर देना है, सेटिंग्स में क्या क्या आपको रखना है, ये सब आप अपने मुताबिक ही चेंज करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने चेंज कर लें। उसके बाद ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में आपको बता देते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स करनी होती हैं। आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज है, डिस्प्ले लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी ऐप सब लोग ही चलाते हैं, हर कंट्री में कहीं भी आपकी ऐप चलाना हो सकता है कि काफ़ी अच्छी बनाई हो आपने, तो इंग्लिश में रखें। उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। और आपको ये जो आर्टिकल वाईफाई ऑनलाइन, ये इमेज वाईफाई ओनली, डाउनलोड वाईफाई ओनली, तो आपको इस पर टिक मार्क नहीं करना है। अगर आपने टिक मार्क कर दिया तो ये खाली डाउनलोड जो होगी वो वाईफाई से होगी, तो इसलिए आप इस पर कुछ भी मत करें। और उसके बाद आप इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आप थीम्स का ऑप्शन में जाएं। आप देख रहे होंगे ये थीम्स का ऑप्शन है, तो आप थीम्स के ऑप्शन में आ जाएं। इस थीम्स के ऑप्शन में आपको 2 थीम्स नज़र आएंगी, सिंपली एक डार्क थीम, एक लाइट थीम। तो आप इन्हें दोनों ले लें, जिसको जो एप्लीकेशन जब यूज़ कर रहा होगा तो जो से भी थीम्स लगानी होगी उसको अपने मुताबिक चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मोनेटाइज। अब आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे मोनेटाइज होता क्या है। मोनेटाइज एक सिंपली गूगल की एक गूगल एडसेंस की जो ऐप होती हैं, आप ऐप में अपने एक देखते हैं कि नीचे एक बैनर नज़र आता है छोटा सा, और ऐड आते हैं उस पर, जो कि एप्लीकेशन पे ऐड लगे होते हैं, उससे आपको पैसा मिलता है। तो आप अपने एक गूगल एडसेंस के अकाउंट या गूगल एडमॉब का या फेसबुक का, जो भी आपके पास ऐड की कंपनीज़ हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे यानी कि आप रजिस्टर करके एक आईडी ले लेंगे। जैसे एडमॉब की आईडी है ये गूगल एडमॉब, तो यहाँ पे आपको सिंपली उसकी एडमॉब की बैनर ऐड की आईडी डालना है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक आईडी पेस्ट करना है और फ्रिक्वेंसी रखना है आपको, और सेव चेंजेस कर देना है, तो आपकी ये मोनेटाइज हो जाएगी ऐप। प्रो वर्जन में क्या होता है कि जैसे कि ये अभी आप appyet.com चला रहे हैं, तो इस पर आपको कुछ कम फंक्शन मिलते हैं जो कि फ्री में खाली अवेलेबल होते हैं। आप प्रोमो जब ले लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे थीम्स आप दूसरी अच्छी से अच्छी लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रो वर्जन में है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जैसे ये अपग्रेड टू प्रो पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ पैसे मांगेगा, और उसके बाद आप उसे पे कर देंगे तो ये आपका पूरा अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा। ये आपका जो बिल्ड है ऑप्शन, आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो जब आपने ये पूरे फंक्शन जो जर्नल, मॉड्यूल्स, सेटिंग्स, थीम्स, मोनेटाइज आपने जब पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको ये बिल्ड करने का ऑप्शन बताएगा। तो करंट टेम्पलेट 3.125 आपने जो सेलेक्ट करी है, टारगेट भी यही है, बिल्ड स्टेटस सक्सेस आपने अच्छे से कर लिया है सब कुछ। उसके बाद आपके जो ये बिल्ड हो जाएगी तो ये सबमिट टू बिल्ड पे आपको करना है। जब आप सबमिट टू बिल्ड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा। अब जैसे कि ये आपको मैं उससे पहले बता दूं कि सबमिट टू गूगल प्ले, आप ये देख रहे हैं सबमिट टू गूगल प्ले, गेट स्टार्टेड विद पब्लिशिंग, डेवलपर कंसोल, पब्लिशिंग, ठीक है ना। तो ये गेट स्टार्टेड विद पब्लिशिंग आप गूगल प्ले पे आप देखते हैं कि जैसे कि अभी आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको फेसबुक की एप्लीकेशन चाहिए, तो आप अपने एंड्रॉयड ऐप में जो गूगल प्ले स्टोर होता है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके आप सिंपली फेसबुक सर्च करते हैं, और उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन नज़र आ जाती है। तो आप भी अपनी इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो मैं बाद में करूँगा। उसके लिए मैं आपको सबमिट टू बिल्ड करके दिखा देता हूँ। मैंने जैसे ही से सबमिट टू बिल्ड कर दिया तो आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा वहाँ पे ये एप्लीकेशन चली गई है। और ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग लिख के आ रहा है, बिल्ड स्टेटस, यानी कि अभी ये पेंडिंग में है। आपको सिंपली 5 से 10 मिनट में ये आपको वहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आप फ्री में ऐप बना सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें।